of reduction is the fourth one, that is com proportionation. ठीक है. Now com proportionation and disproportionation. Disproportionation का आइडिया क्या था? You have one atom, कोई भी atom A है, that was going into two different oxidation state. ठीक है. A, it was in, say for example, A oxidation state में है initially, it was going to some other oxidation state B, which is higher than A, and then it was also going into the second oxidation state, which is lesser than A. That is, B is going to be greater than A, and simultaneously A is going to be lesser than C. जैसे लाइव एग्जांपल जो हमने लिए थे यहाँ पर, KClO3 रिएक्टिंग विथ H2SO4 +5 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये +7 पर HClO4 पर जा रहा है, और साइमल्टेनियसली ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ClO2 पर आ रहा है +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे. +5 से +7 पर गया और +5 से +4 पर गया. ये +5 एंड +7 एंड +4 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? और सृष्टि, आपने वो वीडियो देखा है? हाँ सर. देखा है? ओके फाइन. जस्ट आपके लिए एक क्विक रिकैप के लिए, यस आई एम सेइंग समथिंग. एक सेकेंड. तो disproportion में basically one atom was getting divided into two different oxidation state. Yeah, one single oxidation state was getting divided into two different oxidation states. ठीक है. कॉम प्रोपोर्शनेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है. कॉम प्रोपोर्शनेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है. दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है. इसमें क्या होता है? two atoms or two atoms in different oxidation state combine together to form one single oxidation state atoms. ठीक है. अब दो ही होंगे ऐसा कुछ नहीं है, 3 4 5 भी हो सकते हैं. Their ratio could be anything, but there has to be atoms in different oxidation states which are going to combine and form one single thing. ठीक है. So basically जो भी हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जांपल्स देखे हैं ना, उन सबको उल्टा करके लिख दो and they will become the example of disproportionation, sorry, com proportionation. Am I making sense? जो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन के हमने एग्जांपल्स देखे हैं, उन सबको अगर हम उल्टा करके लिख देते हैं, इसको उल्टा करके लिख दो, इट विल बिकम कॉम प्रोपोर्शनेशन. इसको उल्टा करके लिख दो, दो अलग अलग एटम्स
into different oxidation states. They are joining together to form one single oxidation state atoms. ठीक है, that is by definition form proportionation. कुछ अलग से देखना है तो I'll just write, कुछ और एग्जांपल्स भी बता देता हूँ जो पहले नहीं डिस्कस किया है. I'm discussing it right now. Fe2SO4 whole thrice. It is reacting with Fe to form FeSO4. That's it. Nothing else. ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग सारे में चेक करते हैं क्या क्या है. आप लोग चेक करो और बताओ मुझे. इन द मीन टाइम मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ. Can we identify the atoms which are doing form proportionation or which is exhibiting Yeah, sir. form proportionation, and what is their oxidation state respectively? So sulfate has +1 or sorry -1 or -2. किसको, किसका, Sulfur. कहाँ पे, which reaction you are talking Sulfate. about? Sorry, sulfate. So sorry, sulfate. First reaction. फर्स्ट रिएक्शन में सल्फेट का -2 होता है ना, H2SO4 से सल्फेट आता है ना. हाँ sir. It has to be, the entire sulfate has to be have -2 charge. Sir, in first case, Fe is getting means in first there is Two. yeah sir. Sir means the first in the first Fe which is in the SO4 means which is with SO4. It is getting uh, reduced and and from second it is getting oxidized. Okay, what are their oxidation states? Here it is 3. +2. यहाँ क्या है? Oh, अच्छा सर उधर +3 sir. तो +3 0 +2. ये +3 है, हाँ ये sir. 0 है, 0 ये +2 है. +2. All of us are getting the same answer. Yes, sir. Yes sir. Okay. Good. So these two are combining together. That is FeN +3 state and FeN +2. Sorry, FeN 0 state are combining together to create FeN +2 state. ठीक है. अब यहाँ पर भी हमें अगर बैलेंसिंग करनी होगी
ठीक है, n फैक्टर निकालना होगा तो क्या करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, -2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर गेन कितना होना चाहिए, +2 इलेक्ट्रॉन का, इजंट इट। और यहाँ पर दो एटम है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सो +2 का गेन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन + 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस। तो अब n फैक्टर क्या हो जाएगा, इस आयरन एटम के लिए n फैक्टर क्या रहेगा, इट विल बी 2, राइट। Yes, sir. क्या रहेगा, 2। क्यों रहेगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम लूज या गेन हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, Fe एटम के लिए n फैक्टर 1 रहेगा, लेकिन इस कंपाउंड के लिए अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए n फैक्टर क्या रहेगा, 2 रहेगा। इज इट ओके, क्योंकि दो एटम्स ऑफ Fe है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो टोटल ये मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहा है। एम आई मेकिंग सेंस। या सर। वेरी गुड। अब इधर आ जाते हैं, इसके लिए n फैक्टर क्या रहेगा, सर अगेन 2। नहीं, इसके लिए n फैक्टर 2 नहीं रहेगा। 1, क्या रहेगा, 1, क्या, सॉरी, 1. 1 नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए कितने चाहिए थे, या इसको कितने मिले, सर 2। 2, दैट काउंट इज फाइन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले, 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये देखो, दैट इज द की टू द प्रॉब्लम। अब देखना सर होगा 3। 3, 3। राइट। तो यहां पर ये नंबर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मॉलिक्यूल पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमको, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2/3। इज इट ओके, is it making sense to all of us? So, but before what we did was after adding the stoichiometric coefficient, Hmm. we multiplied the number of electrons into 3. So that's why. मतलब सर फिर जो अगर इधर Fe3 हो जाएगा तो फिर जो पहले के Fe2 के जो मतलब एटम्स है उसमें से एक एक दोनों में से इधर जाएगा तो उसमें से 2 कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से 2 चला जाएगा तो फिर ये 2 हो जाएगा तो फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको डायरेक्टली मतलब ऐसे क्यों नहीं मतलब करते कि 3 को 2 से ये करने का फिर उसको यूनिटरी मेथड से। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा इलैबोरेट करो, आई कुड नॉट गेट यू सर, 3 एट ऑल। कहाँ से आया? कौन सा 3, सर 3 कहाँ से? ये वाला, सर 3 FPS. ये वाला 3 ना, हाँ इसी की बात कर रहे हो ना अथर सामन। हाँ, यस सर. हाँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम एटम बैलेंसिंग। 2 Fe यहाँ पर है, एक Fe यहाँ है, ये दोनों मिलकर के इधर कितने Fe आने चाहिए, 3 आने चाहिए। 3 लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सच दैट 3 एटम ऑफ Fe हो जाए। 3 एटम ऑफ Fe मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ओके सर. What is source of this 3? The source of this 3 is atom balancing of Fe. ठीक है,
अब लकीली ऐसा हो रहा है कि SO4 भी बैलेंस हो जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न, और वी आर नॉट क्यूरियस अबाउट इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, वो लकीली हो रहा है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। जैसे दूसरे केस में वो लक हमारे साथ नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले केस में मे और मे नॉट बी। बात समझ में आ रही है? तीसरे वाले में भी बैलेंसिंग करेंगे तो मतलब एटम बैलेंसिंग सल्फर का करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन और बैलेंस्ड कॉपर। इज इट ओके? तो वो Yes. बाय सियर लक SO4 भी बैलेंस हो जा रहा है, बट आवर पर्पस इज नॉट टू बैलेंस SO4, आवर पर्पस इज जस्ट टू बैलेंस Fe, such that लेफ्ट साइड में एटम काउंट एंड राइट साइड में एटम काउंट शुड मैच अप। इसके लिए वो 3 डाला हमने। Am I crystal clear to all of you? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Let us move on to the next example and calculate the n factor. Let me know the balance things for it. So for the first one, IO4, हाँ, the n factor 4 for I is 7. अच्छा, सबका 7. कैलकुलेट कर लिया है आप लोगों ने? देन आई कैन डिस्कस। बाकी लोगों ने भी कर लिया है क्या सेकंड वाले का कैलकुलेशन? Yes. ओके, गुड। Yes. Sir, then I it is clearly given that it is -1. So this is -1, this is Plus plus 7. 7, plus 7. 7 and the right side 0. 0. 0। परफेक्ट, ठीक है। अब n फैक्टर की बात करते हैं। इसके लिए n फैक्टर क्या रहेगा? इस स्पीसीज के लिए अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी माय n फैक्टर? इस स्पीसीज के लिए n फैक्टर क्या रहेगा? और ऑब्वियसली इस स्पीसीज के लिए n फैक्टर क्या रहेगा? एंड यहाँ पर ये है कि तीनों के लिए अलग अलग रहेगा। मतलब सर IO4 के लिए IO4 माइनस के लिए, हाँ, हाँ IO4 माइनस के लिए सर 14 शायद नहीं 14 क्यों रहेगा? Sir, 7 रहेगा. 7 रहेगा, वेरी गुड। n फैक्टर इज 7। पर एटम 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, और यहाँ पर एक ही एटम है, इसको 2 क्यों करेंगे? मुझे इसको इसका थोड़ी निकालना है कि 2 एटम कंसिडर करना है। जब अंडरस्टूड इसका निकालना होगा तब इसके कैलकुलेशन के टाइम पर 2 एटम कंसिडर करेंगे एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स का गेन देखेंगे। ठीक है, या फॉर दैट मैटर क्या होने वाला है, दैट वी विल डू एंड सी। बट यहां के लिए क्लियरली पर एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब या दूसरे तरीके से करोगे, अगर इसको I2 फॉर्म कराओगे, इसके लिए 2 एटम इसका लोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, बट उसमें इसके 2 मोल्स भी लगेंगे, यहां पर 2 लिखना पड़ेगा आपको। तो इट्स अगेन 14/2 इज 7 ओनली। सो सिंगल एटम के फॉर्म में अगर देखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। I2 फॉर्म करा करके देखना आपको, तो यहाँ पर 2 लिख करके एंड 14/2 करके 7 लाना होगा। दैट्स योर चॉइस। सर लेकिन वो गलत होगा ना क्या गलत होगा? 14/2 नहीं नहीं, हाँ 14 गलत कोई नहीं होगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वली करेक्ट। सर बट आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन ऑलरेडी देयर आर इन द राइट साइड I2 है और लेफ्ट साइड में 2 I है पहले से नहीं, अभी बैलेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, वो बैलेंसिंग के ऊपर मत जाओ। दैट्स नॉट द कंसर्न एट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये बैलेंस दिख रहा है आपको आंखों से, मतलब इट अपीयर्स टू बी बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ एटम, बट इट इज नॉट एट ऑल बैलेंस। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या होगा n फैक्टर? सर 1 1। 1 1. ठीक है, इसके लिए n फैक्टर इज 1। वेरी गुड। अब बात रही इसके लिए n फैक्टर क्या होगा, तो अब हम अपने सारे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया इस फॉर्म में आने के लिए, तो सबसे पहले तो I2 बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, या तो मैं इधर 2 यहीं पर रखूं, या फिर इसको एक ही मान करके एक I एटम आ रहा है,
बाद में इधर से एटम्स आएंगे और उन दोनों को जोड़ के दिखाऊंगा। तो मैं पूरी चीज बता लेता हूं पहले, उसके बाद फिर इंटरप्ट करना, ठीक है ना, बीच में मत करना। 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन किया, गेन कराया मैंने एक एटम पे। और यहां से अब इस चीज के लिए मुझे चाहिए होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, so I'll require 7 such atoms or ions to absorb 7 electrons, sorry, इसका एक चाहिए होगा to absorb 7 electrons, और यहाँ पर 7 ऐसे atoms चाहिए होंगे या ions चाहिए होंगे in order to give away 7 electrons, ठीक है। So I'll require this in 7 k quantity and this in 1 k quantity. Then the number of electrons taken by this species and the number of electron given by this species are going to become equal to 7, and in that process ये 7 और ये 1 मिलके 8 हो गए, एंड 8 हो गए तो I2 के टर्म्स में ये करने के लिए I'll require 4 I2s. Is it okay? तो इसके लिए n फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, n फैक्टर will be equal to 7/4. Is this clear? सर मैं भी ऐसे ही करा था लेकिन मुझे 7/8 आया। 7/8 कैसे आया तुम्हारा? सर मैंने I2 के इधर रखा था। क्या क्या I2 के इधर 8। यहाँ पे 8 लिखा, तो यहाँ पर 8 लिखोगे अगर तो ये 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और मान लो यहाँ पर 1 and 7 लिख करके यहाँ पर 8 लिख दिए हो तो बुद्धू हो तुम। 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, और इधर 7 1 8 ही एटम्स रह रहे हैं। योर एटम्स आर नॉट बैलेंस्ड। I2 है। क्या क्या सॉरी? हाँ सर इधर I2 हाँ तो मतलब यहाँ पर 8 गलती से लिख लिया है तुमने, यू हैव टू करेक्ट इट एंड मेक इट 4। अगर ये 7 और ये 1 लिया है तुमने तो इसको 4 लेना होगा। अगर इसको 2 एंड इसको 14 लिया है तब इसको 8 ले सकते हो, एंड आई डोंट माइंड। सर ये 1:7 के रेशियो में है। हाँ ये 1:7 के रेशियो में रहेंगे, ठीक है। अब ये भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है, आप अगर मतलब शुरू से सोचना चाहो सर इसके एक एटम इधर है इधर 2 एटम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 14 करेंगे और फिर इसको 8 कर लेते हैं तो 16। नेवरदलेस एनीवे इन फैक्टर वही रहेगा, 14/8 हो जाएगा, दैट इज 7/4। दूसरे सिनारियो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर I2 बना ले रहे हो इंडिपेंडेंटली और इधर 14 से मल्टीप्लाई करके 7 I2 बना ले रहे हो, तो ये 8 I2 बन जाएगा एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन, तो n फैक्टर विल स्टिल बी 7/4। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ओके, कैन वी कैलकुलेट द n फैक्टर फॉर, आई मीन, हाँ बोलो ना। सर मेरा बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने डिवाइस चेंज किया, बट सर ये इसका प्रोसेस आप मेरे को एक बार समझा सकते हो क्या? कौन सा प्रोसेस? सर ये वाला मतलब जो अभी आप कर रहे हो ये। अच्छा ठीक है, हाँ कर सकते हैं ना। आयरन वाला सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट का क्या है, आयरन का 3 +3, दूसरे वाले का 0 और इधर क्या बन रहा है, FeSO4 ठीक है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 +2 2। +3 से +2 आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हम लोगों को, +3 से अगर मतलब आयरन +2 पर आ रहा है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1 1, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं आयरन के, 2 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे पर मॉलिक्यूल, 2 तो n फैक्टर इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। ये हाँ आयरन सर, का स्टेट क्या है, 0 आना कहाँ है इसको, +2
कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पड़ेंगे इसको? 2 एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इसके लिए? 2। सर उसके लिए भी 2। ठीक है, ओके। इस FeSO4 के फॉर्मेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हुआ? इस FeSO4 के फॉर्मेशन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हुआ? किसी सर ने 2। कुछ 2, दैट्स इट। हाँ 2 इसने लिया और 2 इसने दिया, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए? 2 रुपए का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 रुपए उसने दिए, 2 रुपए उसने ले लिए, तो टोटल रुपए कितने हुए? 4 थोड़ी होंगे, 2 ही रहेंगे ना। हाँ ठीक है, फाइन। अब पॉइंट ये है दूसरी चीज कि एटम्स कितने इन्वॉल्व हैं आयरन के? ये दो दो के एक्सचेंज में एटम्स कितने 3। इन्वॉल्व हुए? 3। तो एटम बैलेंसिंग इधर तो एक ही दिया हुआ है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए 3 लिखा हमने, हाँ सर ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स ने FeSO4 के किया? 3 मॉलिक्यूल्स ने। 3। FeSO4 का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3। अब यहाँ पर एक पुरानी चीज, मे बी थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, बट इट्स कुछ क्लैरिटी उससे भी आएगी। मान लो FeSO4 को मैं रिएक्ट कराता हूँ कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म FeCl2 प्लस CaSO4, ठीक है। इस रिएक्शन में FeSO4 का एन फैक्टर क्या रहेगा? ये किस टाइप का रिएक्शन है? इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन? सर हाँ क्या हाँ? सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। हाँ, तो निकालो और बताओ मुझे कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। बगैर उसके कैसे बता रहे हो? या फिर कॉन्फिडेंट हो, कहीं देखे हो कि नहीं है, तो फिर बोल भी सकते हो, आई डोंट माइंड। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने लास्ट वाला सॉल्व किया? कौन सा लास्ट वाला? तो Cu2S वाला। नहीं, अभी नहीं किया है। सर ने मुझे आवाज सुनाई नहीं दी थी। सर मुझे लगा कि आपने सॉल्व किया। क्या हुआ? सॉरी। सर मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो मुझे लगा कि आपने सॉल्व कर लिया। नहीं नहीं, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। ये कुछ अथॉरिटी थोड़ा बीच में गायब हो गया था और वो फिर बोला कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था फर्स्ट वाला। और वो एक्सप्लेन करते टाइम मेरे दिमाग में एक और चीज आ गया, तो मैं FeSO4 का यहाँ पर एन फैक्टर 2/3 हमने निकाला है, और ये एक रिएक्शन जस्ट जबरदस्ती का मैंने लिख दिया। और अभी तुम लोगों को एक काम दे दिया है कि ये मुझे बताओ ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है, पहला काम। और फिर ये बताने के बाद आपको ये बताना है कि इसका एन फैक्टर क्या है, FeSO4 का एन फैक्टर इस रिएक्शन में क्या है, ठीक है। ये 2 काम हम लोगों को करना है, एंड आई एक्सपेक्ट अ फटाफट रिजल्ट। वी आर नो मोर अ किड। ठीक है, प्लस माइनस करने में हम लोग को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। Seems quite sarcastic, right? एक्चुअली IIT में फर्स्ट ईयर में गए थे हम लोग, तो फर्स्ट ईयर में लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर्स हमारे ऊपर भी कुछ इसी तरह के सरकास्टिक जोक्स क्रैक किया करते थे।
कुछ तो खतरनाक सी चीजें पूछ लिया करते थे and then they used to taunt us saying us cream of the nation. After cracking JEE, you guys have come here, so you are cream of the nation. You must be able to answer these things, these small things. Yes, कहाँ तक पहुंचे? देखो सर इस केस में सर हाँ मतलब ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है ना सर? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सबका कैलकुलेट करके बोल रहे हो या जस्ट ऐसे ही अंदाजे से बोल रहे हो बिना कैलकुलेट किए? कैलकुलेट करके बोलो। कैलकुलेट करके बोल रहे हो ना? हाँ फिर ठीक है, कैलकुलेट करके बोल रहे हो तो फिर ठीक है, बिना कैलकुलेट किए हुए बोल रहे हो तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। और देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था तुम लोगों को, और इट शुड हैव बीन डन क्विकली। कैसे करते मैं बता देता हूँ, सो दैट फ्यूचर में आप इस चीज को अपने प्रोसेस में एसओपी में इंक्लूड कर लो, ठीक है। सी यहाँ पर एक सल्फेट है, सल्फर कंटेनिंग इस साइड में कोई चीज है क्या? है, क्या है? सल्फेट ही है। तो वी आर नॉट गोइंग टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर सेपरेटली। सल्फेट सल्फेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सल्फेट सल्फेट फॉर्म में ही लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन जो है क्लोराइड के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ भी है और Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ भी है, निगेटिव आयन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। तो अनायंस का हम क्लियर हो गए हैं कि चेंज नहीं हुआ है। बचा एक ये कटायन और दूसरा ये कटायन। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो करके +2 से 0 पर जा सकता है या 0 से +2 जा सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी उसके पास है नहीं, ठीक है। सर सेम है कैल्शियम का। क्या तो हुआ? सेम ही रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जैक्टली यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पर भी +2 है। 0 पर Fe जाता also हुआ same। नहीं दिख रहा, सी 0 पर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। 0 पर जाता तो क्या होता? फ्री कैल्शियम बनता, वो बन नहीं रहा है, तो मतलब चेंज तो नहीं हो रहा है, इतना मैं सीधे बोल सकता हूँ बिना कैलकुलेट किए हुए भी। इफ आई नो दैट ये 0 से 2 या 2 से 0 पर ही जा सकता है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पास तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। दे कैन आइदर गो टू, आई मीन आइदर बी एट +2 और कुड बी एट 0। बीच इंटरमीडिएट स्टेट्स उनके लिए होता ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 1 वाले में या तो 0 रहेगा नहीं तो +1 रहेगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Sir, non-redox reaction. वेरी गुड। सो ये सारी कैलकुलेशंस के बाद ऑब्वियसली एक ही बचता है डाउटफुल केस, वो है आयरन। आयरन का यहाँ पर +2 है और इस साइड भी +2 है, देयरफॉर दिस इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, कोई रिडक्शन नहीं हो, रिडॉक्स नहीं हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। नाउ इस सर्कमस्टांस में हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर? So as it is a non-redox reaction, you taught that the number of cations and anions. Very good. Yes, Net sir. charge on Same. cation or net charge on anion will be its n factor. So what is the net charge on cation or anion? So 2. 2. तो n factor क्या हो जाएगा FeSO4 का? 2. क्या?
2 2, मुझे पहले 4 सुनाई दिया, ठीक है। सो n फैक्टर विल बी 2। यहां से लाइक एक चीज मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं, n फैक्टर इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, n फैक्टर इज अ रिएक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट। इसी चीज को एक बार फिर से स्टैब्लिश करने के लिए मैंने साइड बाय साइड दो रिएक्शंस FeSO4 के लिख दिए, एंड देन वी आर ट्राइंग टू सी दैट, और वी आर having a look at it that n factor for FeSO4 in this reaction is what, 2/3, और सेम FeSO4 का इस रिएक्शन में क्या है, n फैक्टर 2 है, ठीक है। अलग अलग टाइप के रिएक्शन से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, n फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। Is this okay? yes sir. Very good. Let us get back to the second one. और ये अथर्व डी, अथर्व देश पांडे, यू आर हाँ हियर, सर, हो ना? यस सर। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है। अरे होना का मतलब मैं पता चला बता दिया, कभी कभार हुआ भी ऐसा है, एंड जिसने पूछा है वो नहीं है, ऑब्वियसली ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। तो सर थर्ड वाला ट्राई करें। क्या क्या, हाँ थर्ड वाला भी कर Third रहे, वाला। सेकंड वाला फटाफट करके फिर सर यहाँ। मेरा थर्ड वाले में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर अरे मुझे भी मेरा थर्ड प्रॉब्लम आ पे रहा है, मतलब आ रहे हैं, आ रहे, 2 मिनट दो मुझे। आयोडीन का यहाँ पे +7 है, -1 है, यहाँ पे 0 है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा तो 0 पर आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, सो दैट ये 7 गेन करे, तो 7 लूज करने वाला भी चाहिए, सो 7 लिख दिया, तो 7 लूज करने वाले 7 इलेक्ट्रॉन मिले, सॉरी इसने दिए और इसने ले लिए, ठीक है। टोटल 8 आयोडीन एटम्स, इधर 8 आयोडीन बनाने के लिए इधर 4 लिखना पड़ेगा हमको। लेट अस राइट द n factor for iodate, this is iodate, it's going to be 7, this is +7, सो +7 से 0 पर आ रहा है ये आयोडीन, इसलिए इसका n फैक्टर क्या होगा, आयोडेट का n फैक्टर क्या होगा, 7। 7। आयोडाइड का n फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि पर एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है। इस आयोडीन का n फैक्टर क्या होगा, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन के फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हुआ है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का, देयरफॉर n फैक्टर इज 7/4, ठीक है। अब इस सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजेक्टेड 14 हो जाएंगे, तो 14/8 इज सेम एज 7/4, ऐसे करना है या 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके करना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लेट अस कम टू और थर्ड एग्जांपल, हाँ बोलो। सर जैसे इस वाले में तो हम लोग फिर वो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है, उसमें हम लोग खाली ये इनको बैलेंस करते हैं, पूरे इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, वैसा ही करना है ना। हाँ तो यहाँ पर भी इसी को बैलेंस कर रहे हैं ना, मैंने कहा बाकी हाँ एटम्स सर। के ऊपर ध्यान दिया, बोला ही नहीं उसके बारे में। इसमें लकीली बैलेंस हो जा रहा है, उसमें मेरी प्रॉब्लम, मतलब मेरी गलती थोड़ी है, अगर गलती से बैलेंस हो रहा है तो होने दो उसको, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट। सर इंट्रामोलिकुलर में पूरा बैलेंस करना है ना। इंट्रामोलिक्यूलर में पूरा बैलेंस नहीं करना होता है, उसमें दोनों दो एटम्स होते हैं, अलग अलग एटम्स ना, उन दोनों एटम्स को बैलेंस करना होता है। वहां पर हो बस ये रहा था कि दोनों एटम के बैलेंस करने में मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा रिएक्शन ही बैलेंस हो जा रहा था, हाँ सर। जो लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है उनके काउंट्स को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, एटम जो लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है उनके काउंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो दोनों हाँ एटम्स एक तरफ तो एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट थे, बट दूसरे तरफ में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के पार्ट हो जा रहे थे। अब उनके बैलेंसिंग के चक्कर में दोनों एटम्स के
लगभग पूरा रिएक्शन ही बैलेंस हो जा रहा था मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। बट आवर प्राइम idea was to balance only those two atoms, not rest of the things. अब rest of the things एक और कोई नंबर डाल देने से बैलेंस हो जा रहा था तो ठीक है, डाल दिया, right? If I go to those examples, it will be illustrated कि दो एटम्स को बैलेंस करने हैं, बाकी बैलेंस हो जा रहे हैं, या फिर सिर्फ एक नंबर कहीं पर डाल देने से बाकी पूरा बैलेंस हो जा रहा है। और अनरियलिस्टिक वाले केसेस बन नहीं रहते, मतलब ऐसे आयनिक वाले केसेस बन नहीं रहते, बनते नहीं है वहां पर मेनली ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही रहता है इंट्रामोलिकुलर में, ठीक है। एक ऑक्सीडाइज होएगा, दूसरा रिड्यूस होएगा, दोनों एक ही एटम के मॉलिक्यूल के पार्ट होने चाहिए। अब ये सारे कंडीशन सिर्फ एक ही केस में सेटिस्फाई होता है, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में। तो हमेशा डिकम्पोजिशन में जो दो एटम्स, मेनली अगर 3 एटम का मॉलिक्यूल है तब नहीं होगा, बट 2 एटम का ही मॉलिक्यूल है और उसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है तो लगभग सारे एटम्स ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो रिएक्शन अगेन वहां पर भी बाई चांस हो जा रहा था जैसे यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। बट दैट इज नॉट द रूल, दैट इज नॉट द रूल कि पूरा इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। We are only concerned about oxidizing atom and reducing atom. उनके काउंट्स को दोनों साइड में बैलेंस करना है। अगर उनके काउंट्स को बैलेंस नहीं किया तो फिर किसी एक का किसी एक साइड वाले एटम या मॉलिक्यूल का एन फैक्टर जो है ना, वो मैं क्लियरली गेस नहीं कर पाऊंगा। एम आई मेकिंग सेंस? जैसे यहां पर ये बैलेंस नहीं करने से I2 का मैं गेस नहीं कर पाऊंगा कभी भी, ठीक है। वो जब मैं बैलेंस करके एटॉमिक बैलेंस करके और मैं लिखूंगा 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तभी मैं एन फैक्टर इधर का निकाल पाऊंगा, गेस क्या निकाल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा। ओके, नाउ लेट अस कम टू थर्ड क्वेश्चन। बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इधर। सर इसमें नहीं, SO4 सबसे एक पहले साइड पर SO3 एक साइड पर है। let me ask questions and you guys reply and then we will see what is happening, और आप क्या सोच रहे थे एंड कर रहे थे, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर +1 सॉरी, +1 +1, ओके। +2 नहीं हो सकता है इसका, सर नहीं क्यों? सर, क्योंकि ये CO2 है ना, तो एक सिर्फ CO का +1 होगा और फिर CO2 का 2+ होगा। वेरी गुड, ठीक है, ये +1 है। इसका सल्फर का -2 -2, इधर सल्फर का +6 +6, ऑक्सीजन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कॉपर यहाँ पर क्या है? +2 +2। +2 सल्फर क्या है? +4 +4 +4, ठीक है। सर इसके लिए एक डाउट था। हाँ बोलो। सर इधर 2 सल्फर है तो फिर दोनों के जो लास्ट में जो उन लोगों को ऐड करना इलेक्ट्रॉन्स जो ये होंगे। सॉरी फिर से बोलो। सर इधर 2 सल्फर है ना, तो हाँ, फिर सर जो इलेक्ट्रॉन्स गेन और ट्रांसफर होंगे उन दोनों को ऐड करना है ना। हाँ 2 सल्फर हैं, नहीं समझा, फिर से एक बार बोलो, मैं कुछ और सोचने लगा था। एक बार फिर से बोलो अथर्व, क्या बोल रहे थे? सर इधर 2 सल्फर है तो फिर राइट साइड में वो 2s होती है। हाँ मतलब 2 ही क्यों करेंगे, हो सकता है 4 करना पड़े वहां पे, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्टेड के बेसिस पर। यहां से यहां आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन चाहिए? तो आ तो 2, लूज या गेन? गेन। लूज
गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, oh sorry gain ठीक है। और एक ही एटम है, एक ही एटम इधर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां आने के लिए क्या करना होगा? 2 आ sir again 2 क्यों 2? और 2 का Sir, करोगे it क्या? will lose. Sir, it will lose 2 electrons. It will lose 2 electrons to become what? To become S, मतलब उसको मतलब it is. Sir, it will lose सामने होते तो plus four थप्पड़ side. लगाता मैं सीधे सीधे। Sir, sorry, 6. It will require 6. It will require 6. Yeah, sir. 6. hmm? हाँ सर, 6 इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, माइनस सॉरी मतलब वही ऐड प्लस 6 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइनस 1 निकाल पहुंच देंगे जाएगा। क्या करोगे? सर, मतलब निकाल देंगे तो मतलब वही हाँ, प्लस -6 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो क्या होगा? -2 से +4 में आएगा। अथर्व सामंत, yes sir हाँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे थे तुम? sir मैंने सर कुछ नहीं कुछ नहीं हुई, थोड़ी देर पहले तुम कंफ्यूज हो रहे थे ना सर इसमें सर क्या हो करना गया है। सॉल्व हो गया सॉल्व हो गया? हाँ sir मुझे पता हाँ ही सर नहीं मेरा था। भी हो गया। क्या बात है। तुम लोग बेसिक को मतलब पता नहीं क्या कर देते हो, जूसर में डाल के जूस बना देते हो। If you are not going to stick to the basics, it is going to create trouble. ठीक है? CO2s का n फैक्टर क्या रहेगा इस कैलकुलेशन में? It will be 6. SO4 2 माइनस का क्या रहेगा? It will be 2. हाउ 6 How 6? सर, क्योंकि Cu और Cu का भी अलग अलग ही है ना। उसको रहने दो ना, उससे हमको मतलब नहीं है अभी। I'm not concerned about CO. सर 2 आएगा SO4 का 2 आएगा सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस पार्ट सल्फर की वजह से सल्फर की वजह से Cu2s का n फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। और मैं एक इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू क्योंकि बैलेंस द इक्वेशन एज ऑफ नाउ। हाँ बोलो। अच्छा सर मैंने बैलेंस किया था सल्फर के विथ रिस्पेक्ट में दिस इज गोइंग टू हैव n फैक्टर ऑफ 6, सल्फेट इज गोइंग टू हैव n फैक्टर ऑफ 2, 2 सल्फाइड विल हैव n फैक्टर ऑफ सर 3/2 2 3/2। क्यों? सर बैलेंस होने के बाद सर इधर 4 आ रहा इधर 4 आ रहा है, है वेरी गुड। इधर क्या आएगा? सर 3 आएगा Very good. So n factor is, for this n factor is 6/4 6/4, that is 3/2. Perfect. सर यही पूछना था क्या मतलब पूछ उसके रहे बाद थे? सर के उधर मतलब बैलेंस होने के बाद अच्छा, उसके पहले मतलब के सर यही बोला उसके पहले के सारे हो गए थे। गुड हाँ गुड गुड गुड, ठीक है। So we got a decent idea about form proportionations वगैरह वाले में भी कैसे करने हैं। I'm now going to give you सर वो ऊपर का पैराग्राफ कैन यू शो? ऊपर का पैराग्राफ एज इन ये वाला। नहीं सर वो, हाँ ये वाला, हाँ हाँ ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। there is various 1 or 2 small points about reducing agent and oxidizing agent. That is what I'm going to tell you guys, and then we will start with balancing the redox reaction.
ठीक है, सर आपने वो B is greater than A and A is less than C का लिखा है। अरे A, B and C are oxidation state of atom A in reactant and product side. ये disproportionation के लिए है। From सर हाँ, proportion मैं पहले पूछ रहा था, मेरा डाउट था कि सर राइट हैंड साइड में कॉपर एक ही था और लेफ्ट हैंड साइड में सर कॉपर के दो एटम्स थे। मतलब वो मेरा पहला डाउट था। कॉपर से तो हमको अभी कुछ लेना देना ही नहीं था ना, we were not concerned about it. So why? अरे क्योंकि हम बैलेंस थोड़ी कर रहे हैं रिएक्शन को अभी, मैं तुम्हें सिर्फ हाँ फॉर्म सर, वही मैं पूछ प्रोपोर्शनेशन रहा था कि समझा रहा अगर, हूँ ना। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि अगर सर वो है तो फिर कॉपर जो राइट हैंड साइड में होता है 2Cu आएगा ना। मैं हाँ, अगर कॉपर के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो फिर 2Cu उधर रहेगा, ठीक है। तो फिर कॉपर का एन फैक्टर क्या था वो पहले जो बोला? सॉरी, कॉपर का एन फैक्टर हाँ 3 आएगा ना फिर। 3 क्यों होगा? सर 6 कॉपर का एन फैक्टर उधर +1 में है 2 एटम और 2 एटम +2 में आ जा रहे हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोनों एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, दोनों एटम +1 से +2 में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल में है, तो Cu के रेस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, और उसका एन फैक्टर 2 रहेगा, और सल्फर के रेस्पेक्ट में एन फैक्टर 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाँ हाँ 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और उसमें से सॉरी, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ये एटम, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, सॉरी ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट? हाँ सर। यही हो रहा है ना। अब पूरी बैलेंसिंग पूछ रहे हो तो फिर पूरी बैलेंसिंग बता देता हूँ, बट इसके लिए पूरी बैलेंसिंग की जरूरत थी। ये 6 इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, तब यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा, बात समझ रहे हो? अगर पूरी बैलेंसिंग करेंगे हम लोग तो इसका ये नंबर जो है मे बी चेंज हो सकता है, वी विल सी टू इट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर आने के लिए, और ये 2 एटम होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। -2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमको? 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कितने सल्फर यहाँ पे होने चाहिए? 4, ठीक है ना। हाँ yes। और सल्फर एटम की बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर कितने सल्फर आने चाहिए? 5। इज इट ओके? हाँ 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 रहेगा ना 5? तो अब हाँ, ये इस हाँ पूरे स्पीसीज का एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 + 2 8। एन फैक्टर विल बी 8 फॉर दिस इंटायर स्पीसीज, ठीक है। इसका एन फैक्टर तो 2 ही रहेगा। इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नाउ देयर इज 8 electrons which are getting transacted for 5 moles, so n factor will be 8/5। 8/5, that will be the real n factor. क्लियर है? yes हेलो? सर आई आल्सो yes हैड अ स्मॉल डाउट दैट अगर मतलब इंट्रामोलिकुलर में अगर अलग अलग मतलब अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, समझो Cu2S के ही केस में, तो फिर उसको सिंपली ऐड करना है? नहीं, ये इंट्रामोलिकुलर नहीं है ना। नहीं सर, ऐसा कोई रिएक्शन होगा टाइप CO2S के जैसे कि Cu2+ बन गया और उधर जाके S6 अरे बन नहीं गया। बच्चा, नहीं नहीं
ऐड नहीं करना होता है, ऐड कहाँ करना होता है? सर तो हम- फिर क्या करते हैं? अरे हमने इंट्रामोलिकुलर में किया था ना, चलते हैं वहां पर फिर से करते हैं अगर भूल गए हो सर तो। कोई डाउट था मुझे सर। या सर सारे, इसका आंसर चेंज कैसे हो गया? क्योंकि अब हमने सीयू को भी इंट्रोड्यूस कर लिया। आप लोगों ने पूरे एटम की बैलेंसिंग, मतलब पूरे रिएक्शन की बैलेंसिंग करानी चाहिए सारे एटम्स की, क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर। पूरे रिएक्शन का अगर हम देखेंगे तो द एन फैक्टर विल चेंज। ओनली फॉर सल्फर अगर हम देख रहे थे तो द एन फैक्टर वाज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर कोई नॉन रिड्यूसिंग एटम होता, नॉन रिड्यूसिंग एटम होता, या फिर जस्ट इसको ये ना लिख करके Cu2+ ना लिख करके अगर मैं Cu+ इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर पिछली वाली चीजें सही हो जाएंगी। एन फैक्टर वो सारे बैलेंसिंग पहले जो किए हुए तो वो सही हो जाएंगे। बट ये चूंकि +2 पर आ रहा है, +2 पर आ रहा है, तो यहां पर भी हमको दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। क्योंकि दो एटम +1 से +2 पर आ रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसको मुझे बैलेंस करना है सल्फेट को रिड्यूस करके। तो वी विल रिक्वायर 4 such sulfate molecules to be reduced to sulfite। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ये सारे एटम्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसलिए एन फैक्टर चेंज कर जा रहा है। यहाँ पर कुछ बहुत डिफरेंट नहीं हुआ है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों स्पीसीज लूज कर रही हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर एक लूज करता और इसी में दूसरा एटम गेन कर रहा होता, जैसे इसी के रिएक्शन को दूसरे तरीके से अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल Cu2s is reacting with mm, 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 एक सेकेंड ठहर जाओ। रुको, एक काम करते हैं, इसी का डिस्प्रोपोर्शनेशन, सॉरी, डिकम्पोजिशन करा देते हैं। ठीक है, it is then going to create copper and sulfur। is this okay? now this is intra redox। ठीक है, कॉपर इज +1, सल्फाइट इज -2। -2 से ये 0 पर आ रहा है। 0 पर आने के लिए क्या करना होगा, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे। ठीक है, और +1 से 0 पर आने के लिए क्या करना होगा, एक एक करके दो इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। इज दिस ओके? यस सर। यही था ना इंट्रा रेडॉक्स। सर आपने लास्ट इसमें एग्जांपल दिया था KMnO4 gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2। हाँ सर हाँ, उसमें ना अलग अलग वैल्यूज आते, फिर आपने तो बीच में कुछ तो बोला था कि एवरेज निकालना होता है। कहाँ एवरेज निकालने के लिए बोला था? अच्छा सर ठीक आपने है, हाँ सर फिर बोला से था। ठहर जाओ, फिर से कर लेते हैं। KMnO4 giving us K2MnO4 plus O2। यही था ना रिएक्शन? और सर MnO2 भी था। सर MnO2 भी था।
MnO2 भी था। हाँ सर। सर तो आपने कोई तो दो इसके एवरेज MnO2 प्लस O2 था, ये था पूरा रिएक्शन ना। हाँ सर। ठीक। अब सी, इसमें आप लोग को देखना हमेशा ये रहेगा, ये +6 में है और +4 में है, ठीक है। और ऑक्सीजन इज द ओनली थिंग विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ठीक है ना। अब ये यहां से रिड्यूस होकर के +6 में भी आ रहा है और यहीं से रिड्यूस होकर के ये +4 में भी जा रहा है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आना, वो दे दो ना। This Mn is going to get one electron in order to get transformed from +7 to +6, and another atom of Mn will get 3 electrons each to get transformed into +4 state, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं 2 Mn लेता हूं जिसमें से एक Mn इस फॉर्म में आता है और एक Mn इस फॉर्म में आता है, ठीक है, तो टोटल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। यहां पर आई एम गोइंग टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्सीजन -2 से 2 पर आने के लिए 2 × 2। अब इस केस में बेसिकली मैंने डेफिनेटली आपको ये बोला होगा कि अगर KMnO4 का अगर आपको लेना है तो यू विल हैव टू ऐड दिस 2 3 + 1 that will make 4 electrons, and there are two Mn atoms, ठीक है। इसको डिवाइड करो 2 से, that is going to give you the n factor of KMnO4 in this particular scenario। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 एटम्स हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर एन फैक्टर। ये चीज मैंने बोला होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर इसके अंदर मुझे डाउट था कल। हाँ, अब एक मिनट, ये एवरेज जो लेने के लिए बोल रहा हूं, 1 और 1 के ही रेशियो में, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज है। कम से कम मुझे एक एटम चाहिए होगा जो इस तरफ आए और कम से कम एक एटम चाहिए होगा। अब ये एग्जैक्ट रेशियो सर 1:1 ही है, ये हमको कैसे पता, तो ये तो यार रिएक्शन करके ही पता चल सकता है। तो रिएक्शन करके पता चला है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे लाइक काफी सारे रिएक्शंस में हम लोग को और जस्ट बाय राइटिंग रिएक्शन बैलेंसिंग हमें पता चल जाता है कि ये इसी रेशियो में रहना चाहिए। बट दिस इज अ यूनिक केस जहां पर हमको वो पता नहीं चलता है, वो एक्चुअली रिएक्शन कराते हैं, मास बैलेंसिंग से ही पता चलेगा, मास बैलेंसिंग से पता चलेगा, ठीक है, नॉट एनी अदर वे। हाँ, अब बोलो, और बोलो कुछ, मतलब कुछ बोलना है। सर वो आपने सर -2 तो फिर लेकिन 2 से मतलब कि मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या क्या, सॉरी फिर से बोलो। सर ऑक्सीजन के -2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सर वो एक डाउट था। अरे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 एटम्स ऑफ Mn को कन्वर्ट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो कोई सप्लाई भी तो करना चाहिए ओ ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। वो कौन सप्लाई करेगा? समझा। सर और -2e को × 2 क्यों किया? अरे वही तो वो भी पूछ रहा था, -2e को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर। तो मेरा फिर से आंसर यही है कि Mn को मुझे 4 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाना पड़ेगा ना, कोई देगा ना, मेरे पॉकेट में थोड़ी पड़ा हुआ है, वो कौन सर सप्लाई और अगर करेगा। इधर सर 3 नहीं Mn समझा। जगह, सर अरे और अगर इधर Mn 3 को Mn 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो कम से कम 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए होंगे ना 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए।
समझा। अरे ये ऑक्सीजन का -2 स्टेट है और इधर ऑक्सीजन 0 में है, ठीक है। तो पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। We require at least 2 such atoms to lose electrons so that each of Mn can get desired number of electrons for them to get reduced. क्या हुआ हर्षित? या सर समझ गया सर। सर बट मेरे को एक डाउट है हाँ बोलो। सर, मतलब अगर हमने पूरा KMnO अपने सिर्फ KMn का 4 ही निकाला ना, हाँ, तो फिर KMnO4 का क्या होगा सर, एन फैक्टर? KMnO4 का भी n फैक्टर 2 ही होगा। KMnO4 के लिए अलग से थोड़ी आएगा। देखो टोटल 4, और हाँ यहाँ पर Mn का n फैक्टर नहीं निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं KMnO4 का ही निकाल सकता हूँ। Mn का कैसे निकालूंगा? Mn अलग से कहीं पर जाकर के थोड़ी बैठा हुआ है। Mn के लिए तो सिर्फ मैं ये दिखा सकता हूँ कि ओके पर एटम इतने इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, बट Mn के लिए सिर्फ मैं n फैक्टर कहाँ कैसे निकाल सकता हूँ? और देखो हाँ। जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ कि Mn का n फैक्टर क्या होगा, मतलब जैसे आयोडाइड वाले केस में ही, जैसे ये बोल रहा था मैं कि इसका क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन का क्या होगा, ये ही पूछ रहा था ना। इसका मतलब हुआ कि आयोडेट का n फैक्टर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट दिस एटम I। ठीक है, यहां पर आयोडाइड का बोल रहा हूं मैं कि n फैक्टर 1 होगा, नॉट I ओनली। इसके साथ कुछ और एक कटायन भी रहेगा, वो पूरे मॉलिक्यूल का n फैक्टर 1 रहेगा। एंड दैट 1 इज प्राइमरली बिकॉज कि आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट इज देयर डेफिनेटली, बट वो पूरे मॉलिक्यूल का n फैक्टर रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? अब यहाँ KMnO4 का जब मैं देख रहा हूं तो सी the atom which is losing electron and the atom which is gaining electron are part of the same molecule. तो यहां पर the net electrons which is getting transacted, which is 4 electrons are getting transacted between these atoms. For that we are requiring 2 molecules of KMnO4 total. Therefore n factor for this molecule is going to be 2. N factor for this molecule is going to be 2. Is it okay? यस सर। अभी भी कुछ एवरेज वाला डाउट? एवरेज कहीं पर नहीं कर रहा हूं मैं। सर तो सिंपली उसको ऐड करके फिर कर सकते हैं सर। हाँ, इस केस हमेशा में मैं वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमेशा वेटेड एवरेज हो रहा है। अब लकीली 1:1 के रेशियो में रह जा रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। वो मीन और वेटेड एवरेज जो होगा वो सेम ही रहेगा, वेटेड मीन एंड मीन जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। दैट्स नॉट माय फॉल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज ऑलवेज वेटेड एवरेज, ठीक है? ओके सर। क्लियर? ओके fine. So I can move to the next page now. Okay. See, reducing agent and oxidizing agent क्या होते हैं? Reducing agent is one which is able to reduce or it helps something in getting reduced or it reduces something else, ठीक है? और किसी और को reduce कर रहा है तो खुद oxidize हो जाएगा। And oxidizing agent क्या होते हैं? जो दूसरों को oxidize करते हैं और उस process में खुद reduce हो जाते हैं, ठीक है ना? तो एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन बनता है, जनरली पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में
which of them can work as a reducing agent या which of them can work as a oxidizing agent या फिर which of them can work as a reducing as well as oxidizing agent. ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको पिक करना होगा. यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो जज किया जाता है वो ये होता है, जैसे समझो कोई भी एटम है, Mn है, ठीक है. Mn अपने किसी कंपाउंड में, जैसे MnO4 माइनस, ठीक है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सर Mn का हाँ, सर 7. +7, ठीक है. अब Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 7 नो 7 ही होता है. मतलब यहाँ पर Mn जो है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि क्या यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे बढ़ सकता है? यस और नो? नो कैन सर. इट गो टू +8, +9? No, sir. Yes Sir, or if no? it adds to +8 or +9, then it had to develop a new orbit around its nucleus. So it is not really possible. हाँ, मतलब एक्चुअली ऑर्बिट डेवलप नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे जो कि हाईली बाउंडेड है, ठीक है. और वो नहीं कर सकता है, उसकी एबिलिटी के बाहर की चीज है, ठीक है, औकात के बाहर की चीज है, इसलिए वो नहीं करेगा. क्लियर? एंड Yes, sir. therefore this is impossible task. Impossible. If this is impossible, it means what? This can never act as a reducing agent, right ना? ये चूंकि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है. Impossible to oxidize MnO4 minus further. Is it clear? ठीक है ना? इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये कभी भी काम नहीं कर सकता है. दिस molecule or this compound of Mn, when Mn is in +7 state, can never work as reducing agent. क्लियर है? Yeah, sir. Mn का लोएस्ट स्टेट क्या रहेगा? So it will be in positive only because it is a हाँ, सो मेटल है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो मिनिमम स्टेट तो क्या 1. रहेगा? 0. 0. अरे Sorry. 1 क्यों रहेगा? ठीक है, Sorry. स्टेट में एलिमेंटल स्टेट में रहेगा तो 0 रहेगा. क्लियर है सारे लोगों को बात? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. अब अगर ये 0 स्टेट में है तो क्या ये यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है क्या? कैन इट गेट Yeah. फर्दर रिड्यूस्ड? No, कैन इट गेट फर्दर रिड्यूस्ड? No. No, that means it cannot work as oxidizing agent. तो कोई भी एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरह उसके बाद काम नहीं कर सकता है. मतलब दैट एंटिटी कैन नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और जब वो अपने मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है ना, तो वहां से इट कैन नॉट वर्क और दैट स्पीसीज कैन नॉट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. दोनों की तरह वर्क कौन कर सकता है? जब वो इंटरमीडिएट स्टेट में हो तो ऊपर भी बढ़ सकता है, नीचे भी बढ़ सकता है, नीचे भी जा सकता है. मेकिंग सेंस? Yes. सर क्लियर ये है? Mn = 0 कहाँ से मिला मतलब?
अरे मिला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि है। Mn अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका लोएस्ट स्टेट क्या रहेगा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंगनीज क्या है? क्या है? हाँ क्या है? डू यू नो मैंगनीज? हैव यू हर्ड ऑफ इट? या व्हाट इज इट? एलिमेंट। वेरी गुड। एलिमेंट के अंदर कौन से कैटेगरी में आता है वो? मेटल। मेटल। वेरी गुड। हाँ, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते वेरी गुड। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, हाँ। तो उसका उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? सर मतलब 0। हाँ तो वही जीरो लिखा हुआ है। ओ, जैसा अंडरस्टैंड। हम लोग के डाउट्स कभी कभी लगता है तुम लोग कहीं खोए हुए हो। एनीवे गुड। सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि अगर Mn अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है अगर, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज, अब सॉरी वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है क्योंकि वो नेगेटिव स्टेट में नहीं जा सकता, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट मींस इट कैन नॉट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर की अंडरलाइंग फैक्ट जो था वो यही था, इफ एनी atom is in its maximum oxidation state, then it cannot get further oxidized, ठीक है ना? And hence molecules containing an atom in its highest OS cannot work as reducing agent। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सर You इन guys नॉर्मल can note this example. MnO4 minus plus 7. Mn cannot go to plus 8 or plus 9. That means MnO4 minus cannot work as a reducing agent। ठीक है, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे बीच में। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि नॉर्मल स्टेट में 0 ही होता है, तो फिर जो से मतलब जो हाईएस्ट स्टेट पे होगा जो +7 Mn, सर उस स्टेट पे मतलब कि उसके पास 7 मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो फिर नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग प्रोपोजिशन। वो अपने सातों इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऐसा किसने बोला आपको? सर क्योंकि उसके उसका प्लस जैसे यहाँ पे लूज नहीं तो बॉन्ड बना होगा तो फिर वो ऑक्सीजन की तरफ चला गया, राइट? बिल्कुल, शेयर भी तो हो सकता है ना, तो शेयर हुआ है। तो हाँ एक सर, चीज वो से शेयर हो दूसरे चीज पर जंप मत करो, ठीक है? मत- है नहीं सर हम। सो हाँ सर सो मतलब वो यही है कि वो इससे इसमें भी वो रेडियो मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। हाँ, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है।
Is it okay? सर मैं पूछ रहा था कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के माइनस भी हो सकता है ना लीस्ट अरे ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ भाई, मैं उनके लिए कहा सी नहीं डोंट सर मैं सब टेक पूछ टू रहा द था। जीरो। Mn के लिए जीरो है मिनिमम, क्लोरीन के लिए -1 रहेगा, सल्फर के लिए -2 रहेगा, नाइट्रोजन के लिए -3 रहेगा। तो वो लोग -3 से नीचे नहीं जा सकते हैं, राइट? या सर मेरा इस नंबर को लेकर के कोई ये नहीं है कि किसी का भी जीरो के नीचे नहीं जा रहा है। कहीं पर मैं लिखवा रहा हूँ ऐसा, या 7 के ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज आई एम हाईलाइटिंग। ठीक है,